everyone, welcome back to Dr. Diksha's classes. So guys, as you know, we have already been doing CBSE exam based series, है ना, जहाँ पे I am teaching you questions which can come in your board examinations. तो अभी last of all हम case studies कर रहे थे और आज हमारा lecture है on case study 5. Let me tell you, we'll be doing 10 case studies for this chapter so that you, अब कोई भी case study आ जाए पेपर में that will be related to these only, ठीक है, so you will get a very clear cut idea on this. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद केस स्टडी 5th. नाउ सेम थिंग, रीड द पैसेज विच इज गिवन एंड लेट्स क्विकली रीड इट. द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज रूप एंड वासा रेक्टा. लेट्स रिकॉल व्हाट वाज हेनलेज रूप, व्हाट वाज वासा रेक्टा. तो याद करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारी यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के नीचे बोमिन्स कैप्सूल, बोमिन्स कैप्सूल लूपिंग इनटू पीसीटी. पीसीटी के बाद वी हैड लूप नोन एज लूप ऑफ हेनले और इसी लूप ऑफ हेनले में उल्टी तरह चल रहा है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा. सो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, पास पास है एक दूसरे के. As well as the counter current in them helps in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. Obviously they are involved in the counter current mechanism, that is वो सब regulate कर रहे हैं, as well as they are maintaining the inner osmolarity of the medullary interstitium, that is यहाँ पे क्या ज़्यादा है, मोर इज NaCl एंड यूरिया. तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि यहाँ तक सारा हमारा कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स और नीचे क्या लाई करता है हमारा मेड्यूला, तो मेड्यूला में इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज रहती है इनकी. ओके, that is from 300 milliosmol to 1200 milliosmol in the inner medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. ठीक है, as I've already told you. NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle which is exchanged with the descending limb of vasa recta. तो NaCl, just a second. NaCl is exchanged with the ascending limb of loop of Henle. ये loop of Henle की descending limb है, ये loop of Henle की ascending limb है. तो यहाँ से NaCl exchange होता है और इधर कोऑर्डिनेशन चलती है. तो कहाँ जहाँ कोऑर्डिनेशन चलती है वहाँ असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की. NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta. और NaCl वापस इंटरस्टिशियम में कैसे रिटर्न कर दिया जाता है, क्योंकि NaCl यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से जाकर वो वापस असेंडिंग लिम्ब के थ्रू फिर से इंटरस्टिशियम में रेगुलेट हो जाता है. तो मतलब मुश्किल से चीज़ यहाँ तक पहुँची थी, बाहर एक्सक्रीट हुई, यहाँ से फिर वासा रेक्टा ने पुल इन कर ली और दोबारा उसको इधर ले जाके इंटरस्टिशियम में फेंक दिया. ठीक है जी. Similarly, small amounts of urea enters thin segment of ascending limb of loop of Henle and is transported back to the interstitium by collecting tubule. यूरिया का जो है ना फंक्शन वो कैसे है कि ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये DCT की तरह रैप हो जाता है एंड DCT की तरह ये कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म करता है. तो यूरिया जो इंटरस्टिशियम में सिक्रीट करती है यहाँ पर यूरिया, वो डक्ट कौन सी है हमारी, कलेक्टिंग डक्ट. सो कलेक्टिंग डक्ट सारा यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में थ्रो कर देती है. सो दैट इज हाउ वी मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ NaCl and urea in the medullary interstitium. The above described transport of substances is facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta जो वो opposite arranged होते हैं and this is known as counter current mechanism. ठीक है जी, आइए अब इस पे questions देखते हैं. Just a second. Yes, the first question says that an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium is maintained by which compounds. तो कौन से compounds हैं जो इस medullary interstitium की concentration को maintain कर रहे हैं, मैंने पहले ही लिखे थे NaCl and urea. You can check the answers, you have same answer written here.
What is transported by ascending limb of Henle's loop and is exchanged with descending limb of Vasa? Which limb of Vasa recta? So NaCl ascending limb से जाता है और वो descending limb of Vasa recta से change होता है. Actually यहाँ पर डैश था एंड इधर भी डैश था, तो इस डैश में NaCl आना है और इस डैश में descending limb आएगा. ओके जी, चलिए. The small amount of urea enters the thin segment of ascending limb, okay, and is transported back to the interstitium by collecting duct. मैंने बोला था ना यूरिया कौन रिटर्न करता है? कलेक्टिंग डक्ट. NaCl कौन रिटर्न करता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. सो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट. Gradient of NaCl and urea is maintained. That gradient is called as, उसको हम बोलते हैं osmolarity, and that is what is mentioned here. ठीक है जी. डिफाइन काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो जो वो पूरा केस स्टडी में एक्सप्लेन किया हुआ है ना, लाइक NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब, देन इट इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, व्हेन इट इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बैक. सो सच मैकेनिज्म इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, तो आप पूरा केस स्टडी में से ही उठा के इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं इन केस यू डू नॉट नो. वैसे तो मैं बहुत बारी पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली नो. ठीक है जी, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.